Hello guys, today we'll discuss about chapter 3rd, that is India's agriculture sector. In this video, we will discuss about the importance of agriculture, features of agriculture and the problems of agriculture sector in India during the plan periods. So moving towards our first topic, that is the importance of agriculture. The first point is contribution to GDP. Agriculture sector has a significant contribution to GDP. We have the data. In 1951, agriculture sector contributed 51% to GDP, but still we can see that the contribution of agriculture sector started declining. As we know that in 2018-19, it remained only 14.4%. Reason being, over the years as we have started towards the path of development, the focus has been shifted from agriculture to और प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करने लगे वैसे वैसे हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ चला गया, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, आउटपुट है, वो रिड्यूस होती गई धीरे धीरे. नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. जो हमारी असेंशियल फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि इनिशियली हम जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थे फुलफिल करने के लिए. दैट मीन्स वी नीड टू इम्पोर्ट असेंशियल फूड ग्रेन्स टू फुलफिल आर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. But over the years, mainly after Green Revolution, we were capable enough, or we are capable enough to fulfill our food consumption requirement by our own means. दैट मीन्स हमने जो इम्पोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया. इम्पोर्ट्स ऑफ जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी जो है रिडक्शन हो गई और हम अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट खुद ब खुद फुलफिल करने लग गए. और एक फैक्ट ये भी है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ी, बट स्टिल हमने अपना आउटपुट भी बढ़ाया, एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ाया, जिसकी वजह से हम जो है इम्पोर्ट्स के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Agriculture sector being the important source of employment or provides employment to most of the working people or workforce. The 72% of working population were engaged in farming initially during the plan period. Say during the first plan, 72% of the working population were engaged in farming or agriculture activity. But it again started declining as the secondary and tertiary sector started expanding. So the workforce started shifting from primary to secondary and tertiary sector. It remained 47% in 2013. That means 47% of the working population engaged in farming in 2013. It reduced or it started declining, as we have discussed that with the advent of development, our workforce started shifting or migrating from primary to secondary and tertiary sector. Though it is still engages or absorbs more than near about half of the working population or workforce in itself. The next point is supply of raw material. To produce final or finished goods, the raw material is required, and secondary sector जैसे जैसे expand कर रहा था, the requirement or the demand for raw material were also increasing. और इस raw material की जो requirement थी वो agriculture sector fulfill करने लगा, क्योंकि agriculture sector के ऊपर हमारी dependency increase होती गई. ठीक है, तो जो भी हमारी जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी सेकेंडरी सेक्टर को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो रॉ मटेरियल जो था एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करने लगा. मेनली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको जो रॉ मटेरियल कॉटन, जूट, इंडिगो या सीड्स के रूप में उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था. सो एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. Next point is demand for capital goods. Capital goods here means the machines. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हम मशीन्स या मॉडर्न मीन्स हम यूज़ करने लगे ओवर द ईयर्स. तो जो डिमांड थी कैपिटल गुड्स की या मशीन्स की, वो इंक्रीज़ होने लगी. और ये मशीन्स या जो कैपिटल गुड्स थी इंडस्ट्रीज़ में बन रही थी, और दीज कैपिटल गुड्स और मशीन्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड और मेड इन इंडस्ट्रीज़. दैट्स वाई एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपेंशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे, मशीन्स थी या कैपिटल गुड्स थी, उनकी डिमांड भी बढ़ी. जैसे थ्रेशर्स थे, ट्रैक्टर्स थे, टिलर्स थे, व्हाटएवर दीज आर. The next point is contribution to international trade. Apart from fulfilling our domestic requirement or consumption requirement, after Green Revolution, the farmers or the mainly large farmers left with the surplus output, and that surplus output was started selling to other countries. The farmers started selling to other countries. That became our exports.
एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपेंशन के या मॉडर्न मीन्स यूज़ करने के साथ साथ मेनली कुछ फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स जो थे, उनके पास जो है अपने आउटपुट का कुछ हिस्सा अपनी कंजम्पशन या डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद उनके पास सरप्लस आउटपुट बच जाता था और उस सरप्लस आउटपुट को उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मेनली जो है हमारे एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से वो हैं जूट है, कैश्यू नट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टी लीव्स हैं हमारे पास, उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियल आउटलुक एंड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ जो एग्रीकल्चर है उनकी वजह से आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और हमने एक्सपोर्ट्स करने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज़ हुए कंट्री के। The next point is contribution to domestic trade. Apart from contributing to the international trade, mainly increasing exports, we can also highlight the point that uh, we were able to fulfill our consumption requirement domestically. ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी उसको खुद ब खुद फुलफिल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी हमारी कम हो गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे उसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव या डार्क साइड एंड जो ब्राइटर साइड है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर जितना आउटपुट किसी क्रॉप का प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम उसकी प्रोडक्टिविटी मानेंगे। तो मेनली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल आउटपुट थी वो काफ़ी कम थी, मतलब पर हेक्टेयर हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे इंडिया में जितना कि बाकी अदर जो डेवलप्ड या एडवांस कंट्रीज़ या नेशंस थे वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, बिकॉज उनके पास जो है इम्प्रूव्ड या एडवांस्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर या मशीन्स जो थे वो यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका आउटपुट जो था काफ़ी ज़्यादा था हमसे। हमारे पास यहाँ पे टेबल है जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं जो मेन क्रॉप्स हैं हमारी राइस एंड वीट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ से। 2014 का डेटा हमारे पास है कि इंडिया जो है ये जो डेटा है हमारे पास ये टन्स में है और पर हेक्टेयर है। इंडिया जो है पर हेक्टेयर 3.6 टन्स राइस प्रोड्यूस कर पाता था, वेयरएज चाइना एंड वियतनाम वर प्रोड्यूसिंग मोर देन इंडिया 6.8 5.8। एंड इवन इंडिया जो था वो वर्ल्ड एवरेज, जब एवरेज हम निकालें वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो जो कि 4.5 टन्स था पर हेक्टेयर, इंडिया उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहा था। सेम इज़ द केस विद द इन वीट और द प्रोडक्शन ऑफ वीट। द रीज़न वॉज सिंपल कि हमारे पास इम्प्रूव्ड मीन्स या एडवांस्ड मीन्स नहीं थे, या टेक्नोलॉजी हम इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए थे, जिस वजह से हमारे पास प्रोडक्शन या आउटपुट कम था। वो चाहे टेक्नोलॉजी हम सीड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी लेके चल सकते हैं कि इम्प्रूव्ड या हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स हमारे पास इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। और लो प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी भी इकोनॉमी की जो है करेक्टराइज करती है बैकवर्डनेस को। यू कैन से लो प्रोडक्टिविटी करेक्टराइजेज द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज़ मेनली अ पार्ट ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। इट मीन्स when more than required number of workers are engaged in doing any activity, that is called disguised unemployment। मतलब लोग काम तो कर रहे होते हैं, people seems to be employed, not completely unemployed, people seems to be employed but not according to their full capacity और efficiency। यहाँ पे लोग काम तो कर रहे होते हैं, seems to be employed बट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर फुल कैपेसिटी। काम तो कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी जो है अपनी पूरी कैपेसिटी या एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता है। एज वी नो दैट मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड। मतलब किसी काम को करने के लिए अगर 4 वर्कर्स की ज़रूरत है और 5 लगे हुए हैं तो एक एक्स्ट्रा वर्कर है वहाँ पे, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा वर्कर की वजह से सबके बीच में जो काम आएगा या काम का हिस्सा बटेगा वो कम होगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लेबरर और वर्कर विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज देयर फुल एफिशिएंसी और कैपेसिटी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वर्कर ने उनका काम बांट लिया है, ठीक है। इस वजह से टोटल आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि काम उतना ही होगा जितना 4 करते या फिर 5 कर रहे हैं, बट पर हेड या पर यूनिट आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। Due to lack of permanent means of irrigation, most of the farmers used to depend on rainfall. That's why their output was also low। क्योंकि रेनफॉल जो है अनसर्टेन है तो इस वजह से उनकी जो आउटपुट है वो भी अनसर्टेन रहती। इफ़ वी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व ए गुड रेनफॉल द आउटपुट विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। अगर जो हमारा रेनफॉल है वो अच्छा नहीं है तो हमारी आउटपुट भी कम होगी, जिस वजह से जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, अगर वो एग्रीकल्चरली रिच इकोनॉमी है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है,
तो अगर वो एग्रीकल्चरल आउटपुट भी अनसर्टेन है तो इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल नहीं रहेगी, उसकी ग्रोथ भी स्टेबल नहीं रहेगी। किसी तो अकाउंटिंग पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ रेट, किसी अकाउंटिंग पीरियड में कम, क्योंकि डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, क्योंकि यहाँ के आउटपुट जो है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है और रेनफॉल जो है अनसर्टेन है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. This point highlights the outlook of the farmers. How do they perform this activity, this farming activity, or their perception of performing this activity? क्या उनका आउटलुक या परसेप्शन है, उनका सोच जो था इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का रहा? जैसे कि बता रहा है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट मीन्स फार्मर्स डिड नॉट took this activity as a business or commercial activity. फार्मर्स ने इस एक्टिविटी को बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी की तरह से नहीं लिया. दे यूज टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर देयर सब्सिस्टेंस ओनली. मतलब उन्होंने अब सिर्फ अपने गुजारे के लिए जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया. सब्सिस्टेंस मीन्स गुजारा या निर्वाह, मतलब अपनी नीड्स या बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं, सिर्फ इतना ही वो प्रोड्यूस या आउटपुट प्रोड्यूस करते थे. उन्होंने इसको बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में यूज़ नहीं किया. दैट्स वाई देयर मोटिव वॉज नॉट टू अर्न और मेक प्रॉफिट्स, जिस वजह से उनकी इनकम कम रही और हम बैकवर्ड रहे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चरल रिच इकोनॉमी थी. एंड फार्मर्स ने जो है या फार्मर्स का आउटलुक जो था फार्मिंग को लेके वो सब्सिस्टेंस या ट्रेडिशनल आउटलुक था. उन्होंने प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचा, जिस वजह से आउटपुट भी कम रही और इनकम भी कम रही. द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. एज आर इकोनॉमी वॉज नॉट सो डेवलप्ड, तो हमारे पास टेक्निकल मीन्स भी नहीं थे एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए. और मॉडर्न मीन्स ना होने की वजह से ट्रेडिशनल मीन्स लाइक जो फार्मिंग के लिए बुलक्स हैं या कैमल्स हैं वो यूज़ करते थे. एंड जो रेनफॉल थी इरीगेशन का एक ट्रेडिशनल सोर्स या मेन मीन्स, उसको ऊपर डिपेंड थे फार्मर्स. दैट्स वाई हमारे आउटपुट जो थे वो काफ़ी कम थे, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न मीन्स या मॉडर्न आउटपुट नहीं थे यूज़ करने के लिए, जिस वजह से हमारी स्पीड या एफिशिएंसी ऑफ वर्क और एक्टिविटी कम थी या रिड्यूस हो गई थी या रिड्यूस्ड थी. द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम ऑफ या प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम और एग्रीकल्चर सेक्टर. The first point is lack of permanent means of irrigation. As we have discussed in the features that farmers here were dependent on rainfall for irrigation. We do not have or we did not have the developed means of irrigation or permanent means of irrigation. मतलब जो मॉडर्न मीन्स या परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन है, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, वो डेवलप्ड नहीं थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिस वजह से जो था उनका आउटपुट अनसर्टेन या फिर कम ही रहा या कम था. नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस. जैसे कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसी तरीके से फार्मिंग में एग्रीकल्चर में जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए या ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फाइनेंस या कैपिटल की रिक्वायरमेंट फार्मर्स को थी. एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर पुअर बिकॉज स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे उनके पास. तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थे वो पुअर थे, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी. समटाइम्स दे डिड नॉट हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी टू बाय देयर इनपुट्स. उनके पास इतना सफिशेंट मनी भी नहीं था कि वो अपने इनपुट्स जो है वो खरीद सकें, इसलिए दे नीड टू डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स. अब वो अदर सोर्सेज हमारे पास दो हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. या तो बैंक से जाके लोन लो या फिर रिलेटिव्स या फिर मनी लेंडर्स से. मेनली जो रूरल एरिया था, रूरल इंडिया में इतने ज़्यादा बैंक्स की ब्रांचेस नहीं थी. गवर्नमेंट डिड नॉट set up or established a well strengthened chain of banks or institutional sources. That's why farmers need to depend on unorganized or non-institutional sources. Those were the money lenders, landlords or mahajans, and they used to charge a very high rate of interest from the farmers. As a result, most of a larger proportion of income the farmers had to spend to pay off द इंटरेस्ट. फार्मर्स को इंटरेस्ट पे, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे मनी लेंडर्स, तो फार्मर्स की इनकम का ज़्यादातर हिस्सा उनकी इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था, उनके पास सेविंग्स नहीं बचती थी. ये भी एक प्रॉब्लम थी कि कैपिटल की कमी थी और कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए वो ट्रेडिशनल मीन्स के ऊपर डिपेंड थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल आउटलुक. जैसे फीचर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मर्स टुक दिस एक्टिविटी और फार्मिंग एक्टिविटी एज ए सबसिस्टेंस फार्मिंग और सबसिस्टेंस एक्टिविटी. दे डिड नॉट टेक दिस एक्टिविटी एज अ बिजनेस और कमर्शियल आउटलुक. उन्होंने कमर्शियल आउटलुक या बिजनेस आउटलुक के लिए की तरह से इस एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनका मोटिव जो था वो प्रॉफिट अर्न नहीं करना नहीं रहा. वो जस्ट अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे. दैट्स वाई दे रिमेन्ड पुअर. इन कन्वेंशनल आउटलुक की वजह से ही, सबसिस्टेंस आउटलुक की वजह से ही उनका जो है
स्टेटस रहा वो पुअर ही रहा, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, जिस वजह से ना उन्होंने इसमें इनोवेशन की ज़रूरत पड़ी, ना ही उन्होंने मॉडर्न मीन्स यूज़ किए, जिस वजह से आउटपुट कम रही। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। जैसे कि हमने पहले से डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल फार्मर्स का नंबर जो था वो ज़्यादा था। अपार्ट फ्रॉम इट देयर लैंड पीसेस वर स्कैटर्ड, उनके लैंड पीसेस कंसंट्रेटेड नहीं थे, वो स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगह पे बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर पाते थे और उनकी आउटपुट जो थी वो कम रहती थी। The next point is exploitative agrarian relations. Here agrarian relation means landlord tenant relations. हम यहाँ पे landlord और tenant relations को agrarian relations में define करेंगे. Landlord means the landowners and the tenants, those who are the soil tillers. That means जो rent पे लेके किसी की ज़मीन जो है खेती करते हैं, वो tenants हैं, किराएदार जिनको हम बोलते हैं। तो इनके जो रिलेशंस थे वो एक्सप्लॉयटेटिव थे, मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स थे दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फार्म एक्टिविटीज़, and apart from that they share the crop with the tillers or the tenants. वो फार्म एक्टिविटीज़ में तो कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ना तो फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली, ना तो पैसा लगाते थे और ना ही काम करते थे, लेकिन क्रॉप शेयर करने लगते थे या क्रॉप शेयर करते थे, जिसकी वजह से क्रॉप का एक ज़्यादातर हिस्सा लैंडलॉर्ड्स चार्ज कर लेते थे। वो ज़्यादा हिस्सा या एक बड़ा लार्जर पार्ट ही वो चार्ज करते थे टीनेंट्स से, जिस वजह से टीनेंट्स या जो सॉइल टिलर्स थे दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द इंक्रीमेंट ऑफ द आउटपुट, क्योंकि उनको पता था अगर आउटपुट इंक्रीज होगी तो भी ज़्यादा फ़ायदा तो लैंडलॉर्ड्स को होगा, तो उन्होंने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया आउटपुट को इंक्रीज़ करने का। एंड इस सिस्टम को हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो फार्म एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट नहीं थे, दे मेयर शेयर द क्रॉप्स और दे वर क्रॉप शेयर्स ओनली। The next point is lack of organized marketing. Apart from all these problems, Indian agriculturists faced another problem, that is the problem of marketing system. Government did not focus on providing an organized place of marketing where the farmers can sell their output or can get better prices for their crops or output. Mainly small farmers face this problem. गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि फार्मर्स को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपनी क्रॉप्स का एक बेटर प्राइस ले सकें। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम द फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स वर बाउंड टू सेल देयर क्रॉप्स और आउटपुट टू द लोकल ट्रेडर्स, जो कि उनकी क्रॉप का आउटपुट का एक कम प्राइस उनको देते थे, जिस वजह से उनकी इनकम अफेक्ट हुई। तो ये प्रॉब्लम्स जो थी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में फार्मर्स को, मेनली स्मॉल फार्मर्स को फेस करनी पड़ी।